أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحیم. میں نے سنا اللہ کی سنت اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ پاک لوگوں میں سے، فرشتوں میں سے، رسولوں میں سے چنتے ہیں، انتخاب ہوتا ہے، ایسے آدمی نہیں کرتا. تو واقعی میں بہت بڑا اللہ کا فضل ہے ہم سب پر کہ اللہ پاک نے ہمیں اس محنت کے اندر لگایا. اس پر شکر ادا کرنا چاہیے روزانہ. اللہ پاک کہتے ہیں یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. یہ دو باتیں کہی. یہ نعمت دینے کے بعد اللہ پاک نے دو باتیں کہی. ایک تو یہ کہ اس کو مضبوطی سے پکڑو، جیسے کہ کہا گیا ایسا کرو، قربانی کے ساتھ کرو، خوب اچھا کرو. اور پھر کیا کرو؟ کرتے کرتے شکر کرو. لئن شکرتم لازیدنکم. روزانہ 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھنی چاہیے. عمل پہ چھوٹا عمل ہو بڑا عمل ہو، توفیق اللہ کی طرف سے، آدمی کے بس میں نہیں. آدمی تو مسجد میں نہیں آ سکتا تو وہ لاتا ہے. اگر گھر کی توفیق مل گئی، مشورے میں بیٹھنے کی توفیق مل گئی، اللہ کا شکر کرے. اب دیکھیں ایک اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ تو اللہ کو بہت پسند ہے. قرآن میں آپ دیکھو، حدیثوں میں دیکھو، جگہ جگہ اس کی مثالیں بیان کی کہ اللہ کے راستے میں نکلنا یہ اللہ کو کتنا پسند ہے. ایک مثال اللہ پاک نے قرآن میں بیان کی کہ 3 صحابہ آپس میں جمع ہوئے اور وہ مذاکرہ کر رہے تھے کہ کون سی نیکی بڑی، کہ کس پہ زیادہ اجر ملے گا. ایک کہنے لگے کہ حج کا وقت ہے، حج کا ٹائم ہے، اور دور و دراز سے گھڑی ہے، اور مینا، عرفات، مزدلفہ میں پانی کا کوئی نظم نہیں، اور اس وقت گرمی اور تیزی پہ تھی. تو وہ کہنے لگے کہ ایسے موقع پہ حاجیوں کو پانی پلانا، حاجیوں کو پانی پلانا یہ بڑی نیکی ہے. پانی پلانا ہی نیکی ہے. جانوروں کو، کتے کو، ہم سنتے ہیں نا کہ کتے کو پانی پلانے والی اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو. تو پانی پلانا تو اللہ کو بہت پسند ہے. تو انسان کو، پھر انسان میں حجاج، اللہ کا وقت، اللہ کا بیابان، اور اس کو پانی پلانا، یہ تو کتنی بڑی نیکی. تو کہنے لگے یہ بڑی نیکی. دوسرے کہنے لگے کہ مسجد حرام بیت اللہ ہے، جہاں ایک نماز پڑھو تو کتنی نماز کا ثواب ملتا ہے؟ 1 لاکھ. 1 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اور ہر وقت 120 رحمتیں اترتی ہیں. 60 رحمتیں طواف کرنے والے پہ، 40 عبادت کرنے والے پہ، اور 20 خالی دیکھنے والے پہ. 120 رحمت. اب اس کی تعمیر میں لگنا، اللہ اکبر، یہ تو کتنی بڑی نیکی. تو صحابی کہنے لگے کہ مسجد حرام کی تعمیر میں لگنا یہ بڑی نیکی. حدیث بات میں آتا ہے جو اللہ کا گھر بنائے اللہ اس کے لیے گھر بنائے. اللہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے. یہاں مسجدوں کی فضیلت ہے، تو پھر مسجد حرام کی تعمیر میں لگنا یہ تو کتنی بڑی فضیلت ہے. تو جس کو ہدایت کا مرکز کہا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اللہ پاک نے اس کو ہدایت کا مرکز بنایا. اب اس کی تعمیر میں لگنا ہے تو بہت بڑی نیکی. کہنے لگے مسجد حرام کی تعمیر میں لگنا یہ بڑی نیکی. تیسرے کہنے لگے اللہ کے راستے میں نکلنا یہ بڑی نیکی. اب تینوں آپس میں مذاکرہ کر رہے ہیں، تینوں آپس میں مذاکرہ کر رہے. اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. قرآن کی آیت لے کر اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. کہ نبی جی ان سے کہیے کہ حاجیوں کو پانی پلانے والے اور مسجد حرام کی تعمیر کرنے والے اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتے تو اللہ کے راستے میں. ہاں، اس کا یقین ہونا چاہیے. اور پھر اس وقت آپ جو زون میں گئے ہو نا، یہ تو اور بڑھ چڑھ کر ہے. سمجھ میں ایک عمل ہوتا ہے، ایک عمل کی کیفیت ہوتی ہے. جیسے ایک آدمی بغیر وضو کے قرآن پڑھتا ہے، بغیر وضو کے قرآن پڑھتا ہے تو ایک حرف پر اس کو کتنی نیکیاں ملے گی؟ 10 نیکی ملے گی.
ایک آدمی وضو کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، حالانکہ وہی سورہ فاتحہ پڑھی بغیر وضو کے پڑھی، اب وہی وضو کے ساتھ نہ پڑھی تو وضو کے ساتھ پڑھنے پہ ایک حرف پر 25 نیکیاں ملی۔ اچھا وہی سورہ فاتحہ اس نے نماز میں پڑھی، بیٹھ کر پڑھی تو ایک حرف پر 50 نیکیاں ملی۔ وہی سورہ فاتحہ اس نے کھڑے ہو کر پڑھی تو ایک حرف پر 100 نیکیاں ملی۔ تو حالانکہ صورت وہی ہے، ایسے اللہ کے راستے میں نکلنا، بھائی 3 دن کے لیے، 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے، ایسے بنجر علاقوں میں وہ کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ اس میں سب سے بڑی کیفیت جو ہوتی ہے وہ ذہن کی ہوتی ہے، اس لیے اجر زیادہ ہوتا ہے۔ قسم و پرسوں میں جانا، نبی کا عین کا عین مقصد بے طلبوں میں جو دھکا مارتے تھے، جو دھتکارتے تھے، جو کیا کہتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، ہر نبی کے ساتھ آپ دیکھو پورے قرآن میں ہر ایک کے ساتھ میں ملے گا۔ جیسے نبی علیہ السلام بار بار گئے، بار بار ایسے لوگوں کے پاس لیلا و نہارا ولم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا۔ یعنی یہ معاملہ نبیوں کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ تو زون کی جماعت اس میں نکلنا یہ تو بڑے خوش نصیب ہے۔ اب اس پر کیا ملا یہ تو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا، یہ تو کل اجر تو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ ہاں اور سو جب اجر ہوگا وہ کھلے گا نا تو ہر آدمی تمنا کرے گا کہ کاش ہم بھی چلے ہوتے، کاش بھی ہم گئے ہوتے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں زون میں چلنا اور پھر گہرے زون میں چلنا، دونوں میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ارے بولو نا بھائی، ارے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاں ہمارے ایک ساتھی کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ 30 سال مجھے ہو گئے، پابندی سے میرا وقت لگتا ہے، لیکن جب زون کی محنت سے شروع ہوئی 2010 سے تو میں نے اس میں چلہ لگایا تو وہ چلہ سارے چلوں سے بڑھ گیا کہ جو کیفیت بنی، جو قسم اس میں پھر نماز، تلاوت، ذکر، دعا، کہ اس میں جو جان پڑی تو ماشاءاللہ آپ جو ہے وہ زون میں جا کر آئے، اللہ اسے قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ اس میں آپ تھکے ہوں گے، ٹھہرے ہوں گے، سارا قربانی بن گیا۔ ٹھہرنے میں ٹھہرنا، قسم و پرسوں میں کہ بھائی آگے چل کر قیامت کا کوئی انتظام ہے نہیں ہے، سارے مسائل ہے، گاؤں کے اندر داخل ہونے دیں گے نہیں ہونے دیں گے۔ ماشاءاللہ آپ نے ہمت کی، آپ سب سے پہلے مسجد میں داخل ہو گئے اور ماشاءاللہ آپ نے جو ہے وہ مسجد میں قیام کیا، آپ مسجد میں ٹھہرے، پھر آپ کو وہاں سے آپ کو نکالا، آپ باہر آ گئے، باہر آپ نے جو ٹینٹ باندھا، باہر خیمہ ڈالا، اس میں آپ ٹھہرے، اب وہ عمل آپ کرتے رہے تو وہ آپ کا ٹھہرنا، وہ آپ کا کرنا، حالانکہ ظاہر میں ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن یہ تو بیج ڈل گئے، نسلوں کے فیصلے ہوں گے، ہاں نسلوں کے فیصلے ہوں گے۔ کام ہی ایسا ہے کہ دکھتا نہیں ہے لیکن اس کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ قربانیاں ہوتی ہیں، وہ آپ کی آیا ہوتی ہے، وہ آپ کا رونا ہوتا ہے، وہ آپ کی تڑپ ہوتی ہے، وہ آپ کی بے چینی ہوتی ہے، وہ آپ کی فکر ہوتی ہے جو رنگ لاتی ہے۔ ہاں مولانا رحمۃ اللہ علیہ جب ابتدا میں جماعت بھیجتے تو ایسے ہی ہوتا تھا، کوئی پرسان حال نہیں، پورے شہر کے اندر، پورے گاؤں کے اندر کوئی پرسان حال نہیں، کوئی استقبال کرنے والا نہیں، کوئی ٹھکانہ دینے والا نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے۔ جماعت ایسے ہی وہاں ٹھہرتی، صبح سے شام تک درس کرتی، کچھ نہیں ملتا، پھر وہ خیمہ ایسا ہی جو ہے وہ ڈال دیتے اور وہیں پہ ٹھہرتے، ہاں اور عمل کرتے، پھر دوسرے دن محنت کرتی، 2 دن 3 دن جماعت وہاں پہ ٹھہرتی۔ اب الحمدللہ کہ وہ جماعت تو نکل گئی، ہم لوگ گئے تھے اسپین میں، اسپین پورتگل، تو وہاں کے ہمارے ذمہ دار تھے، وہ ہمیں لے گئے کہ وہاں سے بھی جو مرکز دیکھ رہے ہیں نا آپ کہ 50 کے اندر ایک جماعت پیدل آئی تھی، زون کی جماعت، چٹائی والی جماعت، جماعت الحصیر، وہ جماعت، اور اس جماعت نے جہاں جہاں قیام کیا وہاں مسجدیں بن گئی۔ ایک رات اللہ کو کر کے اللہ قبول فرما، ایک موقع ہوتا ہے، چلے ہم سب کو طے کرنا چاہیے کہ بار بار زون میں جانا ہے، بار زون میں جانا، گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہاں وہ تو آدمی چلتا ہے نا تو وہ پھر ختم ہو جاتا ہے، ایک ماحول اس کا بنا ہے، ہر ایک کو جانا چاہیے، بار بار کوشش کرے ہر سال جانے کی، ہر سال موقع نہیں ملتا، کئی دوسرے سال، تیسرے سال،
कम से कम तीसरे चौथे साल हमारा नंबर आता है, इसलिए कि इसमें बहुत सारी मिलती है। जहाँ अचर है उसके बाद हमारी कैफियत भी बनती है, ऐसी अजीब कैफियत बनती है, और आदमी अल्लाह से रब्ता रखता है, अल्लाह से रब्ता इसका मजबूत हो जाता है, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत हो जाता है, फिर उसकी हर चीज़ में ध्यान पड़ जाती है। हाँ, कि कस्म पुरसों में जाने से और जो उन फिक्रों के साथ वक्त लगाने से फिर अल्लाह का कबूल फरमा लेते। पहले ज़माने के 3 दिन जो होते थे ना, वैसे होते थे जोन की तरतीब पे, ऐसे होते थे, फुर्साने हाल नहीं, तो कोई फुर्सा, लेकिन वो 3 दिन नहीं होते थे, वो अल्लाह को कबूल कर लेते। हाँ, जमात हमारी मसूरत की ज़्यादा साल नहीं होते, 15 साल हुए होंगे, अफ्रीका के एक मुल्क के अंदर गई, मसूरत की जमात थी। अब जो है वो एक वो रहबर जो था वो हबशी था, अफ्रीकन भाई था, तो वो साथ में बेचारा लगा था। अब उसने एक दरख्वास्त की कि ये जमात को मेरे घर ठहराना है। हालांकि उसका घर जो था वो बिल्कुल कच्चा था, नीचे भी कुछ नहीं ऊपर भी, हाँ। लेकिन उसने कहा अब वो जमात कैसे वहाँ पे ठहरे, मसूरत की जमात। उसको ऐसा लगा कि ये ठहरेंगे नहीं, तो उसने कहा कि अगर आप नहीं ठहरोगे ना तो मैं तो फिर ये काम नहीं करूँगा। ये कैसा, खैर जमात के जिम्मेदार समझदार थे, उन्होंने तरबीब दी और जमात जो है वो उसके घर पे गई। वो कच्चा मकान बिल्कुल सूरज की रोशनी में, बारिश का ज़माना था तो बारिश भी गिरी, अच्छा नीचे कोई चीज़ रखने की नहीं, तो सामान भी गिला हो, प्लास्टिक भी, और फिर दूसरा ये कि कहीं सांप निकल गया, कहीं बिच्छू निकल गया, कहीं कोई और चीज़ निकल गई हो तो मसूरा, तो 2-3 घंटे में सारी परेशान हो गई, यहाँ तो नहीं ठहरना है और ऐसा और चलेंगे। खैर वो जो जिम्मेदार थे इन्होंने जाके तरकीब दी और समझाया, जैसे आपकी नफरतें होती है ना दौर में, आपके साथी जो है वो समझाते कि नहीं भाई ठहरो, ठहरने से काम होगा, चलने से काम होगा, एकदम से निकल जाना कि नहीं इससे काम नहीं होगा। तो वो जमात जो है वो उसको तरकीब दी तो ठहरी वहाँ पर। अब जो है वो रात में पार्टी डाल दिए नीचे, ताकि पानी, बारिश तेज हो गई, पानी नीचे से जा रहा है, वो पार्टी पे सामान रखा, वो मसूरत सोए कैसे है, वो ऐसे ही उसमें पार्टी पे सामान पे जो है वो ऐसे ही बैठी रही। रात का बड़ा हिस्सा गुजर गया, उसमें जो बड़ी मसूरात, बड़ी उम्र की मसूरात थी, तो उसको आँख लग गई। जैसे आँख लगी तो ख्वाब पे उसने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को देखा, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उससे कहने लगे कि ये जमात कामयाब है, ये जमात कामयाब है। तो माशाल्लाह वो काम हम करके आए, तो इसलिए अब जो कारगुजारी हमारी इस वक्त होगी, उसका कारनामे नहीं है, सिर्फ कारगुजारी तो अल्लाह पाक लेंगे। हाँ, तो इसमें कोई तकलीफ ऐसी चीज़ें बयान नहीं करनी, बल्कि ऐसी बातें कि जिससे हमें शौक बढ़े। हाँ, कि वो तो वक्ती थी, चली गई। हाँ, कि लज्जत समझ कर गुनाह न कर, लज्जत खत्म हो गई, गुनाह बाकी रह गया, और मशक्कत समझ कर इबादत न छोड़, नेकी न छोड़। मशक्कत तो खत्म हो गई, वक्ती थी खत्म हो गई, लेकिन वो तो बुनियाद डल गई। पता नहीं कितनों की हिदायत का नजरिया बन जाएंगे इंशाल्लाह, कितनों के कलमे आपने पढ़ा ऐसे हो जाएंगे, कितनों की नमाज ऐसे हो जाएगी। जितने मुर्तद हो रहे थे आपके जाने की वजह से वो बाकी रह गए। एक आदमी का हिदायत पे आ जाना तो वो काम आप हजरत करके आए, उसमें कोई कारनामे नहीं, जो चीज़ है वो हमें बता दी। उसमें सबसे पहले तो आपके कौन से हल्के की जमात थी, उसमें कितने साथी थे आपके, आपको कितने, उसमें 4 महीने वाले कितने थे, कितने बंजर देहात आपको दिए गए थे, और 5 घरों से ज़्यादा कितने थे, और उसमें आप जो ठहरे तो कितना ठहरे उसमें, और उसमें क्या क्या चीज़ें हुई, मस्जिद थी, मस्जिद नहीं थी, वहाँ हमारी मेहनत से क्या हुआ, कितनों को हमने कलमा पढ़ा है, कितनों को हमने कलमा ताज़ा किया, कलमा हमने कितनों को जो वो सिखाया, लेकर बैठे, क्या कहाँ कहाँ नमाज कायम हुई, कहाँ मकतब कायम हुआ, कहाँ से कुछ लोग हमारे साथ में नकद चले, चाहे वो हमारी रहबरी की, कुछ लोग कुछ हमारे साथ में नकद चले, देखिए। और दूसरे नंबर पे जो जमात फिर बाद में चली है, यहाँ कितने लोगों को लेकर, ठीक है करेंगे, अल्लाह ताला आ जाएंगे। चलो भाई ये जो है ना, ये जमात के जिम्मे नहीं था, हम सब के जिम्मे जितने दिया, बल्कि पूरी उम्मत के हम सब जिम्मेदार हैं। इसलिए इसको ध्यान से सुने
जो कमी बेशी है उसको हम सब मिल के इस्तीफा दें। अल्लाह माफ करे। चलो कड़ी जोन की कागुजर कयाम क्या जगह हुआ। आप लोग कितने साथी थे? 10 साथी, माशाल्लाह 10 साथी। अच्छा उसमें 4 महीने वाले कितने थे? सब साथी 4। सभी 4 महीने वाले। अच्छा और उसमें बड़ी उम्र के कोई थे? सबसे बड़ी अच्छा इकबाल चरण खाली मोइन के दिन आके इकबाल चरण मोइन 14 जगह क्याम हुआ। उसमें आपको टोटल जिहाद कितने दिए थे? 17 दिया थे। अच्छा। ये जोन में कड़ी जोन में 17 दिया थे। क्यों भाई 17 दिया। अच्छा जी 166 किलोमीटर चलना हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। 325 मुलाकातें हुई माशाल्लाह माशाल्लाह और 30 साथियों को कलमा पढ़ा है। माशाल्लाह हमारे साथ में 22 साथियों ने नमाज पढ़ी। माशाल्लाह एक गांव में हम ठहरे जहाँ पहले जमात को ठहरने नहीं देते थे। गांव के अंदर मस्जिद के पड़ोस में एक साथी का मकान था, उस खुली जगह थी, उसके अंदर कायम किया। आप टेंट लेकर गए थे? हाँ टेंट लेके गए। अच्छा अब यहाँ से आप चले ना और पूरा ऐसा आप पहले यहाँ से पहले गांव में पहले कौन सा गांव था और किसमें गया? सुभाषण गांव था, देवसणा में हम गए। अच्छा वहाँ बड़ी बस्ती थी गांव के अंदर। तो वहाँ हम गांव में पहुंचे तहकीक करी। मस्जिद थी? मस्जिद ना मस्जिद मदरसा कुछ कुछ नहीं। नहीं। अच्छा वहाँ गए, फिर वहाँ जाके तो जमाते पहले गई होगी इसमें? हाँ जमाते गई? हाँ। कितने मकान है आपको यहाँ से? आपने फहरिस्त ली होगी ना? हाँ 22 मकान। 22 मकान। चले पहले तो वैसे तो 45 भी बताते थे मगर वो कम हो गए, 22 मकान थे। जी जी 22 और हमने एक जगह जहाँ दरगाह के पास जाके तंबू डाला और वहाँ कायम किया। दरगाह में जो लोग आते थे उनकी इकराम भी करते थे, उनकी मुलाकात भी करते थे। दरगाह के जो मुजावर थे उनकी भी हमने मुलाकात की। माशाल्लाह जी। और क्या क्या किया आपने इस गाँव में? कितना ठहरे? हमने मुलाकातें करी। कितना ठहरा आपने? 2 दिन। अच्छा 2 दिन ठहरे। अब गए थे अंदर मुलाकात करने के लिए? हाँ गाँव दुनिया में में। अच्छा एक एक घर की मुलाकात करने गए थे। कुछ साथी बाहर आते थे, कुछ साथी नहीं आते थे, कोशिश करते थे। 22 मकानों में कितने लोगों से मुलाकात की आपने? कोशिश हमने हर घर की मुलाकात, कुछ साथी घरों से बाहर नहीं निकले, बाकी लगभग हमने कोशिश की हर घर से हर घर की माशाल्लाह देखो मुलाकात। इन्होंने बहुत सही किया। एक पहला तो ये था कि अंदर चले गए। जमात बाज़ में क्या होता है कि जाती नहीं जो दे अंदर चले जाओ। अगर मस्जिद है तो मस्जिद में आप चले जाओ। पहला काम ये बिल घबराए बगैर मस्जिद के अंदर चले जाना। माशाल्लाह फिर दूसरा काम इन्होंने ये किया कि वो जितने घर थे माशाल्लाह सबकी मुलाकातें हुई। कुछ रह गए? हाँ कुछ रह गए। चलो माशाल्लाह 2 काम हो गए। फिर आगे आपने क्या किया? फिर वहाँ ठहरते थे। फिर बाज़ मरतबा जो राशन लेने की जरूरत पड़ती थी तो मुसलमान दुकान से जाते थे, तो इस वजह से भी बाज़ मुलाकात होती थी। पहले दिन गए, फिर दूसरे दिन गए तो उसका लड़का बैठा था तो उसकी पहले भी दिन आप मुलाकात। गए तो राशन लेने के लिए जो मुलाकातें आपने की हाँ तो उसमें फिर आप उनको नमाज के लिए नहीं लाए? हाँ कोशिश की। उसमें से फिर कुछ साथी आने का वादा किया, फिर कुछ दरगाह पर आए तो उनकी हमने इकराम करके नमाज के लिए भी उनको आमादा की। नहीं, उसमें कैसा है कि एक तो दावत देनी और दूसरे नंबर पे जब नमाज का वक्त हो तो दस करके उनको नमाज के लिए ना। अच्छा कोई ऐसा जवान ऐसे कोई बच्चे मिले इसलिए कि पहला काम जो हमारा है ना हर घरात में नमाज को शुरू करना है। क्या करना? हाँ नमाज का छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है, बरुल कबाइर। हाँ कि नमाज बहुत नाराज हो। आज उम्मत में अब देखो नमाज नहीं है, नमाज नहीं है तो ये जाकर कितने
अभी बहुत सारे जानवरों ने कारगुजारी सुनाई. वो कहते हैं 35 साल में पहली बार उसने सजदा किया. 35 साल. अल्लाह ताला कितने खुश होंगे. तो पहला काम हमारा ये होना चाहिए. तो नमाज के अपने क्या फिक्र तरजीह देते थे और उनको हमारा भी नमाज के वक्त भी हम कहते थे, वो तैयार नहीं होते थे, तरजीह देते थे हर मत. तो कुछ बच्चे नहीं मिले आपको. बच्चे नहीं मिले. बच्चों की भी मुलाकात की. ये गाँव में कब से जमाते जाती है. ये गाँव में आपसे पहले जमाते ये कब से जाती है. 2010 से 2010 से बराबर जाती है. तो यहाँ 22 मकान में कोई बस्ती या कोई बस थाना कायम नमाज पढ़ने के. अच्छा हमारे लिए तो कोई मुश्किल नहीं माना पड़ा रहा. आप तो जो है ना वो कोई गरीब वाली जगह वही दरख्त के नीचे साफ करके वही तालीम कर वही टेंट डाल के जो मकाना है जो मकाना है वही. और वही आप उनके सामने उनके बच्चे देखते हैं, उनकी औरतें देखती ये नमाज पढ़ते हैं. ऐसी जगह हमने कोशिश की पहले थी, फिर क्या हो अभी वो गंदगी और नापाकी बहुत ज़्यादा, हमने वहाँ भी कोशिश की मगर वहाँ कोई इंतजाम नहीं था. फिर थोड़े दूर हम ठहरे, पहले हमने वही कोशिश की उनके घरों के पास. हाँ उनके पहले क्या है वो गैर मुस्लिम की जगह थी तो वो दे देता था, मगर वो क्या था हमारे भाइयों का बंटवारा हो गया तो और जगह नहीं. अच्छा ये कौन सी बिरादरी है. सिपाही बिरादरी. सिपाही बिरादरी. ये कोई कॉन्ट्रैक्ट वाले होंगे. हाँ? हाँ वो नौरते थे ना, उस वजह से भी वो गैर मुस्लिमों को. लेकिन इसमें ये होता है कि थोड़ा सा आप कोशिश करो ना. 2-4 एक आदमी आगे और उससे नमाज पढ़ाना शुरू कर दिया आपने. कोई 2 दिन पे मोटी मोटी चीजें उसको सिखा दी. अभी जमात अपनी बड़ा जाकर काम करके आई अहमदाबाद. वो लोग ऐसे 8 जिहाद 8 बस्तियाँ ऐसी थी सब मुसलमान, लेकिन एक जगह की नमाज है. बल्कि वो लोग गए पाकि साफी नहीं. तो उसमें कारगुजारी सुनाई तो औरतें भी खड़े खड़े पेशा कर दी. सिंजा का तरीका भी मालूम नहीं. अच्छा दूसरा निकाह नहीं. एक 25 में दादा के पोते के बेटे के तीनों के निकाह बड़ा भाई ये हाल. लेकिन वो कहते हैं कि थोड़ी सी हमारी मेहनत थोड़ी सी. अच्छा आदमी किस पे जोड़ता है. खाने. हाँ खाने में कोई इख्तिलाफ नहीं है. एक ऐसी चीज है ना जिसको जोड़ो किसी भी मुल्क वाले को किसी को भी कि दस्तरखान पे हर आदमी आ जाता है. उन्होंने पहले ही काम क्या किया, दस्तरखान पूरे गांव की दावत. तो कहते हैं रोजाना 2 बकरे 3 बकरे हम लोग का पूरा गाँव. अब वो जब आदमी खाने आया आप जैसे जिसको आपने बोला तो उसमें अपने ये दावत दी देंगे भाई चलो हिकमत है ना. जैसे अपने गांव में गए तो अपने मुसलमान का गांव या तलाश करना है तो क्या पूछेंगे. अपने ही पूछेंगे कि मुसलमान कितने हैं 5 के गले पे चौरा है. बल्कि अपने उसको यूं कहेंगे अब्दुल्ला भाई क्या रहते. अब्दुल्ला भाई अल्लाह का बंदा कि भाई कहाँ रहते. तो वो फिर कहता है अब्दुल्ला भाई नहीं रहता पहले समीर भाई रहते फिर जो फौरन कहेंगे. ये हिकमत है. समझना. ऐसे उसको अपने चाय पे बुलाओ. चाचा चाय तैयार क्यों ना हमारे साथ चाय के लिए. बात आप ऐसे नहीं आएगा लेकिन चाय के लिए खाने के लिए. अच्छा दोपहर में आपकी खाने की दावत है, शाम की आपकी खाने की दावत है. तो ये खाने पे वो मसवा आ जाएगा. कुछ जवान है कुछ अभी आपके पास में आ गए तो वो कहते हैं कि जो लोग आए ना तो हमने उनको प्रैक्टिकल नमाज सिखाई. कुछ नहीं आता था तो वो जवानों को छोटी छोटी सूरतें अब इन आते ना कल का उधर कितनी 5 मिनट में याद हो जावे. आदमी लेके बैठे ना बच्चे को तो कैसा होता है. बच्चे होते हैं 18-20 साल का बच्चा उसको सिखा अजान शौक होता है उसको. कई जब तो बच्चे को अजान सिखाई वो बाद में कोई बच्चे अजान दे और उसमें क्या उसको इमामत कराओ उसके पीछे नमाज पढ़ो. पहले दिन दूसरे दिन पहले दिन सिखा दो और दूसरे वही टूट जैसा पढ़ता है पढ़ने दो उसको. अब वो खड़ा हो गया इमाम नमाज पढ़ा. अब माशाल्लाह उसको फिक्र होगी. अब जितने दूसरे लोग हैं ना सब आएंगे कि भाई नमाज तो पढ़नी चाहिए. नमाज तो
पढ़नी चाहिए, कोई भी हो कैसा भी हो, नमाज के लिए इनकार नहीं है। बस समझ में आई ना? हाँ, तो हमने कोशिश की खाने पर भी उनको बुलाया, लेकिन भाई नहीं आए तो अब उसके लिए तो सर रात को भी रोना हुआ था। हाँ, रात को उठते थे सब रोते थे। चलो माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा। लेकिन अभी इसमें इसकी जरूरत है, इसके कोई रिश्तेदारी या कौन है, सिपाही बिरादरी की कौन लोग हैं, कौन किससे मानूस है, समझना। हर आदमी को जो है ना इसकी बिरादरी से निस्बत होती है। लोगों के सिद्दीक रज़ी अल्लाह तो पहले जो तारुफ करा था तो अपने उसको मानूस कर दे, ला खैरा फी मन ला यार, उसमें कोई खैर ही नहीं है कि जो मानूस रहो, मानूस करे भी नहीं, मानूस होए भी नहीं पहले मानूस है, बैठ के क्या है भाई दर्जी, भाई देखो हमारा भाई फला है, भाई हमारी जमात में है, वो मानूस हो गया, करीब हुआ, वो आएगा आपके पास में बैठेगा, चल मेरी शक्ल है तो ये उसमें कोई अच्छा उसमें किसी ने कलमा पढ़ा है इसका अपने हाँ, कालू भाई करके थे करीब में, उसको उसकी लड़की को हमने कलमा पढ़ा है, खाने की दावत की, नमाज की भी दावत की। नमाज की दावत के लिए आपको जरा लेके चलना, या फिर ऐसा होता है ना किसी के कहीं घर के बाहर ही कहीं चीज डाल देते, हमने ऐसी कोशिश की मगर वो काबू में नहीं है। होटल वगैरह ऐसा बनी था घरों के सामने कोई ऐसी चीज, कोई बकरियां ऐसा बकरियां बांध देते, तो थोड़ा साइड पे करके प्लास्टिक तो था ही आपके पास। चलो अल्लाह ताला आसान करे। अच्छा फिर परसों रात का प्रोग्राम हुआ, हमने कोशिश की, बताया भी 2 दिन मेहनत करी, हर गांव में पहले यही काम ये पहले गांव में मसूरत का प्रोग्राम नहीं, मसूरत मसूरत का प्रोग्राम कोशिश की हमने, क्या मतलब उसको आपने कोई जगह पर बोला, मसूरत तो ज्यादा फिक्रमंद होती है। हमने कोशिश की नहीं। बेगूसराय के अंदर एक कड़ी के कोई लेडीज से मदरसा पढ़ा था, बच्चे पढ़ा था, अच्छा तो कोशिश की मस्तूरात के बयान के पर नहीं बचा, नहीं हुआ, बच्चे पढ़ा था वो लेडीज से। चलो अल्लाह ताला। और फिर आगे क्या हुआ, और क्या क्या हुआ? मुलाकातें करते थे और वो दरगाह थी, वहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे आते थे जो गांव में हम मुलाकात करने गए, मुलाकात नहीं हुई, कोई कारोबार में नौकरी देने, तो फिर वो दरगाह पर आते थे, तो दरगाह पर भी हम उनकी जो भी आता था उसकी मुलाकात हम करते थे। माशाअल्लाह बहुत अच्छा। कितना ठहरे इसमें? 2 दिन। 2 दिन। चलो फिर आगे दूसरा, अब दूसरे में कोई जगह आप ठहरे हो, कहीं ऐसा कुछ काम हुआ, 5-6 काम मैंने गिरे हैं ना, वो ऐसा कोई उसकी जरा कारगुजारी सुनाओ कि भाई यहाँ हमने नमाज शुरू कर दी, या हमने इतने लोगों को जो वो कलमा था, कलमा इनको ले गए, हमारी तालीम में इतने आए, फिर इनका जो कोशिश तो ये देतरोज गांव में गए हम, 50 किलो 2 दिन ठहरे, उसके बाद देतरोज हाँ देतरोज गए, वहाँ के लोगों को कितना मकान दिया? देतरोज में 7 मकान। 7 मकान। कोशिश की, नजदीक भी कुछ मकान थे, कुछ दूर थे, भी जाके मुलाकात हमने वीरों की बस्ती में 20 छपरा से વધારે છે। 20 કરી वीरों की बस्ती में 20 छपरा होगी વધારે। अच्छा वहाँ बैठ के तो बात हुई थी? हाँ, 15-20 बैठ के बात हुई। बात हुई। नहीं ये शायद आपका जाना ही है। चलो बच्चे हैं उनके, बच्चों के जरिए भी हमने उनको बच्चों को कुछ चीजें दी, खाना खिलाया, वीरों की बस्ती ની કારગુજારી બેસ્ટ है આપણા માટે। हमारा मौसाल कौन से गांव में है, इस तरीके से कोई काम की है, वहाँ जाके उनके सूरत में प्रोग्राम भी होते हैं ना, पैसे देने, ये जो होते हैं ना बिल्कुल साड़ी नहीं पहनते जो करे नहीं करे मेरे 5 किलो नहीं, मेरे 2 किलो जोड़ करे फिर कहाँ से आ गई? आप पूछो तो पता ही नहीं। बहुत अजीब हाँ, 1 किलो मेरे, 1 किलो अब्दुल का। ऐसे लोग जो है ना, ऐसे लोग हम लोग देखते हैं हज में आते ही, हाँ हज में ऐसे ही आते हैं, हाँ, खाली इलियास मोहल्ले की आती है क्यों? फिर उनको याद होती ही नहीं, लपे की इलियास मोहल्ले जबान पे में नहीं चढ़ती। मास्टर फिर आगे बढ़ वो के अंतर का बोलने लग, रोटी लेके जल्दी जाओ। ऐसे वो बड़ी उम्र हो जाती है, अब देहातों में ऐसी जिंदगी गुजरी होती है, ना नमाज ना अज़ान नहीं है, ना जुमा के लिए गए, कुछ नहीं, ऐसे ही कस्बों खुशों में। बल्कि और आगे बहुत सारे देहातों में तो अब जो है वो उस तरफ जा रहे हैं, अल्लाह माफ़ फरमा, अल्लाह माफ़ फरमा। बहुत सारे देहातों की अब ये कारगुजारी आ रही है कि भाई हम तो मुसलमान है ही नहीं, हम तो मुसलमान है ही नहीं, आप हमारे पास क्यों आते हो? बहुत चौकन्ना होने की जरूरत है। हाँ, चलो आगे।
आगे बाल्टी में हम गए, वहाँ 6 घर थे, जी एक एक घर की हमने मुलाकात की। माशाल्लाह माशाल्लाह। सुबह में भी गए, शाम को भी गए, 2 दिन वहाँ भी ठहरे। 2 साथी हमारे साथ नमाज पढ़ी, हमने उनका इकराम भी किया। माशाल्लाह दोनों आपने हाँ, तो उसको अपने फिर नमाज उनसे नहीं पढ़वाई तो लेके बैठ कर जब आपके पास आए थे? वो हमने ये भी मेहनत की, मगर वो फिर काम पर चले जाते तो पूरा दिन। नहीं कितने आधा घंटा पौना घंटा? हाँ, उस वक्त बैठे, कोशिश की, और ये नमाज की भी हमने कोशिश की। पहला काम कलमा अपने पढ़ने का। देखो आप हम पढ़ते आप पढ़ो, ये नहीं कह रहा तुम पढ़ो, हम पढ़ते आप पढ़ो, पहला काम। फिर नमाज की जी साथ में सब पढ़ते थे। ऐसा माशाल्लाह सही। और उनकी दुकान थी, दुकान से राशन खरीदते थे, फिर उस बहाने भी उनकी मुलाकातें होती। रिश्तेदारी की वजह से भी थोड़ा काम करते थे, रिश्तेदारी की पहचान भी निकली, इस वजह से भी अब काफी ये बात। पूरे उसमें आपके कहीं कोई जगह नमाज जिंदा हुई? आपने 14 में आपने ख्याल किया ना? हाँ, 14 में तो कोई जगह नमाज जिंदा हुई ऐसा? नहीं, इलाजे करवाए सबको, कोई जगह नमाज जिंदा नहीं हुई। असल में क्या प्रैक्टिकल करवाना है। चलो इच्छुक हो गई, माइंदा ध्यान प्रैक्टिकल करवाना है। एक तो इरादे तो ठीक है, वो तो बात है, तो प्रैक्टिकल जो है ना वो उनको लेके जाने का, और वो देखे नमाज आप पढ़ोगे ना। तो मैं वही कह रहा था कि वो नमाज जो उन्होंने सिखाई ना उस जमात में 2 दिन में, तो वो कहते हैं कि हमारे से अच्छी नमाज पढ़ते थे। 2 दिन वाली नमाज हमारे से सीखे, सीख गए माशाल्लाह, हमसे अच्छी नमाज पढ़ते। अच्छा कितना आप चले, कितना टोटल? 166 किलोमीटर। 166 किलोमीटर। अल्लाह कबूल फरमा। बहुत बहुत चलो भाई दूसरी जगह जो इसमें चली, ये जोन में चली, दूसरी इस जोन में तो एक ही चली। हमारी जमात मुदर डाल के की थी, उसमें 9 साथी थे, और हमारा रुख गांधीनगर और कलोल जोन के अंदर हमारा वक्त लगा। उसमें हमारे कलोल जोन हमारी जमात में 4 महीने वाले 6 साथी, दूसरी चिल्ले वाले। पूरे सफर में कुल 23 जगह पर कायम हुआ हमारा। टोटल आपको दिया कितने दिए थे? 23 ही थे, तो 23 ही जगह पे कायम। बहुत अच्छा, अल्लाह कबूल फरमा माशाल्लाह। 7 जगह ऐसी थी जिसमें टेंट में या खुले में हुए। अच्छा अच्छा बराबर। बाकी बाकी कोई इबादत खाना है या कोई ऐसी जगह दरगाह है, जी जी मतलब कायम तो हुआ ही हर जगह। कायम 2 दिन रुकते थे हर दिन, किसी जगह पर 1 दिन भी रुके। जी पैदल चलना पूरे सफर में 140 किलोमीटर के करीब, और कुल मुलाकात 450 टोटल मुलाकात है 450 450 पूरे सफर। माशाल्लाह। इसमें 21 आदमियों को कलमा सिखाया बैठ करके। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बहुत बहुत कबूल फरमा माशाल्लाह। पूरे सफर में 21 साथियों ने हमारे साथ में नमाज पढ़ी। माशाल्लाह 21 साथियों ने आपके साथ नमाज पढ़ी। अच्छा आप लोगों के साथ कोई चला 2 दिन 3 दिन आपके साथ, या 1 दिन? कम से कम रहबरी की हो, एक गांव से दूसरे गांव पे चलो ऐसा करो, वो गांव तक हमको छोड़ दो, ऐसा कोई नहीं? कितने लोगों ने आपके साथ? 21 आदमियों ने हमारे साथ नमाज पढ़ी माशाल्लाह माशाल्लाह। पूरे सफर में। और 3 जगह ऐसी थी जहाँ पर हमने, जहाँ नमाज तो होती थी, जैसे कुछ बेकरी पर रुके, बिलाल वे माइक थोड़ा, बेकरी पर रुके, एक होटल थी वहाँ पर मुसलमान थे बाहर के, तो वहाँ पर नमाज की उन्होंने तरतीब बनाई हुई है। नमाज होती है एक अलग जगह तय की हुई उन्होंने, तो नमाज में इतना मजमा जितने वहाँ पर है इतने होते नहीं। तो नमाज यहाँ पर पढ़ने के एतबार से बैठ करके उनको समझाया तरकीब थी। और तालीम की 3 जगह ऐसी थी जहाँ पर तालीम के एतबार से भी तालीम थी, क्योंकि यहाँ मेरे अमल की तालीम 2 मिनट 5 मिनट भी करो, क्योंकि
सौभाग्य पैदा होगा तो इंशाल्लाह ऐसा। जी माशाल्लाह। क्या तरतीब होती थी? हमारी जमात के अंदर ये तरतीब थी, जिस जगह पर जाते थे अभी जैसे पहले देहात कौन से, पहले देहात में कौन से पहले मीरों की बस्ती में कितने मकान थे? वहाँ तकरीबन 20 के करीब छपरे थे। 20 मकान। अच्छा, वहाँ कोई मस्जिद मदरसा? मदरसा चलता था, अच्छा, कौन चला था? अंजन करके एक मौलाना आते थे, अच्छा अच्छा माशाल्लाह। उसमें बच्चे पढ़ते हैं? बच्चे पढ़ते। नमाज नहीं हम? नमाज की अच्छा, ये मदरसा कब से चलता है? काफ़ी टाइम से चलता है मदरसा। काफी टाइम। हाँ, और दूसरा गश भी होता है, साथी जाते हैं और वहाँ 5 की मस्जिद करीब पड़ती है, वहाँ से साथी वहाँ पर नमाज के लिए भी उनको लेकर आते। तो ये तो 20 मकान है कितने? 20 मकान है, लेकिन उसके अंदर कैसे हमारा छपरे और वो इस तरीके से बीच में शुरू भी किया था। वहाँ पर एक नमाज गश करने के लिए जाते थे तो एक नमाज वहाँ पर पढ़ते भी थे और उसके अंदर कुछ साथी जमा भी हो जाते थे। अच्छा जी उसको जारी रखो जी, असल में ये काम जो नहीं है जमात का है। अब जो चले ना उसमें क्या होता है, आप ठहरते हो, जब आप ठहरते हो ना, जिस जगह पे जमात कायम करती है ना, पड़ाव जाती है, उस जगह जो है ना वो नरम हो जाती है उस जमीन। आपका ठहरना में ना वो आपके फिर अम्मात, आपकी तालीम, आपका दावत देना, आपका नमाज पढ़ना, आपका जिक्र करना, ये बड़ा अवसर होता है। हम तो इसको समझते हैं, लेकिन ये बहुत पॉजिटिव है। ऐसे मौके पे भी क्या होता है, दिन नरम होता है। अच्छा, हर घड़ी एक जैसी नहीं होती, तो घड़ी अल्लाह की तरफ से तय होती है। एक आदमी ने कई मरतबा धक्के मारे, लेकिन फिर वही कहे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तो आप देखो ना कितनी मरतबा गए, कितनी मरतबा बार गए, फिर वो घड़ी होती है, तो फिर वो घड़ी फिर अल्लाह को उससे कबूल करेगी। समझना ना, तो ये चीज हमारी होनी चाहिए कि जहाँ 5 मकान से ज्यादा है वहाँ पहला काम नमाज कायम करना, पहला ही काम। इंशाल्लाह ये तो हमारा काम तो बहुत पुराना हो गया, 10 से चल रही है, 14 साल हो गए। ये हमें एक निशाना बनाना है। 20 मकान माशाल्लाह मेहनत हो रही है, अल्लाह कबूल फरमावे, हम कर भी रहे हैं। लेकिन जमात जिस वक्त ठहरे ना, एक तो चीज दूसरा गज से उसको करेंगे, लेकिन जमात 2 दिन जरूर पड़े, तीसरा दिन अब जब आप ठहरोगे ना तो हो सकता है पहले दिन कोई आपको पूछे भी नहीं कोई बात, लेकिन रात का आपका रोना दूसरे दिन आप देखोगे, फिर आप जाओगे मुलाकात करने के लिए। अभी हालांकि उसने कहा हमारा भी बात नहीं करवाई, उसी के पास गए, उसका दिल नरम हो गया। अच्छा, जैसे नरम हुआ ऐसा आप लेकर आए। और हमारे यहाँ तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत पक्का इबादत खाना हो। हमारे तो जो आपने सुना ना, कोई दरख्त के नीचे, कोई ऐसी जगह घर में नहीं, इसलिए 12 घर है 13 बाग है, कोई के घर के अंदर नहीं, कोई दूसरे के घर में नहीं जाएगा, तो बाहरी दरख्त के नीचे चटाई ले ली, ये अपना हो गया, सफाई कर ली, चटाई ले ली, नमाज पढ़ी और फिर ये तरतीब दे देनी 2 दिन में, इस पे खड़ा करना, इतना ही हमारा काम है। ये काम हो गया ना, फिर आगे का वो लोग करेंगे। समझ में बात, तो ये चीज होनी चाहिए भाई। ये बात समझ में आ रही, सबके लिए, इनके लिए नहीं है। हाँ, इसलिए आइंदा कारगुजारी हमारी ऐसी आवे कि एक जमात के जरिए 4 जगह 5 जगह नमाजें शुरू हो जाए। और अब इस वक्त तो ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह दिल आराम है, वो पूरा साल उनसे राब्ता रख के वो करना है इसको भाई, ठीक है। चलो आगे। अच्छा, फिर वहाँ और क्या चीजें थी अपने पहले इसके अंदर हम वहाँ जब पहुंचे, उसके बाद वहाँ पर एक खुली जगह थी, वहाँ टेंट बांध करके तालीम के अखबार से पूरी दिन का मशवरा कर लिया, तरतीब बना दी, इतने मकान है, इतनी मुलाकातें करनी, साथियों को सौंप दिया भी आप यहाँ जाएंगे, आप यहाँ जाएंगे, आप इस तरीके से वहाँ पर पूरे अमाल किए। अच्छा, पूरा अमल। उसके अंदर जिस हमारे सामने जिस एक छपरा था, तो उसने हमारा अच्छा साथ दिया, हमारे साथ रहा हो। हाँ माशाल्लाह। तो तस्कीर उसकी हमने ये की कि भाई एक साथ और कर ले, हालांकि उसके लिए बड़ी मुश्किल चीज़ थी वो हमारे साथ रहना और कारोबार का आगे पीछे करना। उसने हमारे साथ पूरे दिन रहा, क्या किया नहीं, इंशाल्लाह मैं करूँ, पूरा दिन हमारे साथ है।
वहाँ पर हमने उसमें उनका एक मिजाज है कि वो मगरिब के अंदर अक्सर ऐसा ही मामला होता है, जमाते जाती है उस वक्त के अंदर भी मगरिब में जो जाते हैं वो मुलाकात करके सबको जमा कर लेते हैं और सब जमा हो जाते हैं 20-25 के करीब। उसके बाद में फिर बात इस तरीके से पहले दिन तो हमने गश्त किया और ईशा के बाद किया तो कुछ काबू में नहीं आया। फिर दूसरे दिन फिर हमने ऐसा किया कि मगरिब के बाद सबकी मुलाकातें की, सबको बुलाया, जब सब जमा हो गए बात तय हुई थी। वो बात में भी हमने बात तय कर दी थी कि ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है, तो सिर्फ कलमा ज़्यादा पढ़ना है उसका, क्योंकि मामला ऐसा ही था। 10-1 मिनट बात करके फौरन सबको अलग अलग बिठा के, जितने भी साथी आए थे 15-20 सबको कलमा अलग से सबने एक साथी लेकर साथ पे जोड़ा। और वो ईशा की नमाज लोगों ने आपके साथ पढ़ी? कुछ लोगों ने पढ़ी, उसमें तो कुछ चले गए लेकिन कुछ लोगों ने ईशा की नमाज हमारे साथ पढ़ी। 6 साथियों ने शायद, बहुत बड़ी बात। सही, सबने 6 ने पढ़ी आपके साथ। और वहाँ पर मसूरात का प्रोग्राम भी किया। हाँ हाँ हाँ, माशाअल्लाह। अच्छा, मसूरात का प्रोग्राम भी हुआ? हाँ, 11 मसूरात। 11 मसूरात भी। कैसे किया प्रोग्राम आपने? हमने तय किया और सामने जो मसूरात कैसे? सामने बैठ गई? ना सामने नहीं बैठी थी। हाँ, तो क्या विचार उनको पता हमने नहीं? तय किया मसूरगंज में मसूरत का प्रोग्राम था, तो सामने जो जबरा था उससे बात की कि भाई हमने ऐसा सोचा है, क्या करेंगे उसके लिए। तो उसने कहा कि भाई मेरे ही घर ही रख लो। और साथियों ने फिर मुलाकातें की, सबको दावत दी कि भाई यहाँ पर 3:30 बजे मसूरत में बात होगी। सारी औरतें भी वहाँ जमा हुई। अच्छा, माशाअल्लाह। अंदर पर्दे का मकूल। हाँ, हाँ, ये हमारा काम कोई भी शरीयत के खिलाफ नहीं, सब इसी तरीके से गुनाह के जरिए नेकी वजूद में नहीं आती, हमेशा ये उसूल हमारा है। माशाअल्लाह, पर्दे के माकूल नज़्म के साथ बहुत अच्छा। गुजराती में गुजराती गुजराती में मर्दों में औरतों में दोनों। अच्छा, माशाअल्लाह। पूरी जगह पर गुजराती ये भी हमारे वो तो सही, बिल्कुल सही। इंसान ही तो अल्लाह पाक ने हर कौम के लिए नबी उसी ज़बान में भेजे। चलो जी। और उसके बाद में फिर वहाँ से हमने 3-4 जो ईसा में जो जमा हुए थे उन्होंने जो 3-4 ऐसे मसूरात तो आपने कहा हमारा इस्तेमाल है बंदासन में। बंदासन जो उस वक्त जगह तय नहीं हुई थी, किस जगह अच्छा, उस किस जगह तारीख तय तय हुई थी, तारीख किस तारीख से जिले पहुँचते हैं। अच्छा, असल में बात मरतबा क्या होता है, मसूरात में आप ये बात कहो ना तो उनके दिमाग में बैठ जाती है। फिर जब वो बातें सुनते हैं उनको तो बहुत अच्छा लगता है, अरे ये तो अच्छी बात है। फिर वो अपने बेटे को, शोहर को भेजती। चलो माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, अल्लाह कबूल फरमाए। उस जगह पर जो ईसा में कुछ नौजवान थे, 3-4 ऐसे नौजवान थे जो जमात के साथ बैठे। जमात में माशाल्लाह बहुत सारे, अक्सर 5-6 नौजवान ही थे, बस तो उनके पास थोड़ा ताल्लुक हुआ, बैठे। तो एक बात हमने उनसे तय करवाई कि आप हमारे साथ जो हम आगे जा रहे हैं वहाँ पर हमारे साथ 1-2 दिन रहो और अब पूरी नमाज के एतबार से थोड़ी तरतीब सीख लो। वो आखिरी दिन भी सारा मौका मिला था, दूसरे दिन जाना था। फिर उन्होंने उसमें से 2 साथी तैयार भी हुए कि हम इंशाल्लाह सुबह में आपके साथ यहाँ से चलेंगे। उनके साइड पे से दूसरी सुबह में तस्कीर में वसूल करने भी गए उनको, लेकिन नहीं कर पाए। तो भाई वो तो जिस वक्त आए थे ना उसी वक्त करने का था। उस वक्त किया मौला। अच्छा, उनको पूरी नमाज तो कलमा सिखाया ना। हाँ, वो पूरी तो- नमाज में मोटी मोटी चीज, नमाज का तरीका प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकल की शक्ल उनके सामने आनी चाहिए, वो उसको शौक पैदा होता है। फिर इसमें 1-2 आ गए ना तो समझो कि वो काम हो गया, नमाज शुरू हो गई, बीच डर गया अपना। चलो ये भी बहुत बड़ी बात है माशाअल्लाह। अच्छा, फिर आगे फिर हम लोग दूसरी जगह पर अच्छा, कितनी मुलाकात थी पूरे उसमें? 450 के करीब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, आपको 50 मुलाकात किसको कहते हैं? माशाअल्लाह। अच्छा, फिर आप लोगों की अमल की क्या सुना ना? अमल के अंदर मौलाना की बात होती थी, हमारे फजर के बाद नाश्ता होता था, इशराक के बाद फौरन नाश्ता क्या होता था, तैयार आता था या क्या? नहीं, चाय और पौवा है। मतलब आप लोग करते थे ना? अच्छा, कितना पकाया आपने पूरे सफर में? 60 पैसे फिर 40-20 और तो यानी उनको ऐसे हल्के वाले करते थे या गाँव वाले करते? हल्के वाले का हल्के वाले, तो उनको कैसे पता चला? बना हाँ? लोग बना तो वो लोग टिफिन लेके आते? अच्छा, तो फिर वो आप पहले उनको कह देते होंगे भाई गांव में जाते हैं, ये गांव में कोई ऐसा जिस हफ्ते में जैसे गांधीनगर चलती थी तारीख के हिसाब से इनको दे दिया था कि भाई 2 दिन ये गांव में, 2 दिन ये गांव में, 2 दिन ये गांव में।
तो इस हिसाब से गांधीनगर की मस्जिद और जमातों को भी कह रखा था कि भाई जमात ये रुख के ऊपर चलने वाली है, तो उस हिसाब से जो उनके इलाके के करीब पड़ती थी वो मस्जिद और जमात इनके पास में चली जाती थी। जमात के पास फोन वोन नहीं था, तो जमात वो चलती थी, वो रुख के हिसाब से, दिन के हिसाब से साथी जमात के पास में पहुंच जाते थे। वो मतलब खाना लेके जी पहुंचे। जी, खाना साथ में उनको तरकीब सब बैठना उनके पास में पूरा। तरकीब जो तरकीब क्या है, कैसा है, कैसा काम लेते थे, आगे कुछ रैली करते थे, तरकीब की बात को पूरा जब ये तो चीज सही है, लेकिन अभी एक ग्रुप जो है ना वो दूसरी तरफ जा रहा है कि वो बार बार नए नए साथी आ रहे हैं मुलाकात करने के लिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बाकायदा मशवरे से ये क्या होता था, मशवरे से क्या होता है, जमात जो है वो फोन कर देती है भाई हम यहाँ पे आ रहे हैं, नहीं ऐसा वो खाना भी वो लेके आ रहे हैं, कोई जमात में फोन नहीं हमारी। कपड़े वगैरह आपके धोने के आप ही धो दे। हाँ, इसलिए कि ये चीजें जो है ना वो हम खुद पकाना भी हमारा इसकी कैफियत और अजीब रूल होता है। चलो आगे, और कितना चले हमारा चल रहा है 140 किलोमीटर। 140 किलोमीटर। तो अब फिर आपने अभी इस वक्त कुछ मेहनत होकर लाए वहां से कुछ नकद? पहली दूध पे चली थी और उसके बाद हमारे बाद दूसरी जमात हो, और वो तो बात जमा, वो तो जमा है, लेकिन बाद में आखिर में 1-2 दिन नहीं गए उनको वसूल करने के लिए, जब जब जहाँ जहाँ चले। ये तो क्या था, दोनों जमातें कुछ साथी मिलके फिर आखिर में वसूली करते। तो भी लेकिन आना तो आप कहे हो, आपको भी उन्होंने पहचाना जिन जवानों की आपने मुलाकात की दूसरों को पता नहीं, तो नंबर वगैरह उनके अपने लिए सबके जिनसे ज्यादा जिनसे मुलाकात नंबर वगैरह लेते ना, तो काम होता हो तो पूरी कारगुजारी है। तो हमारा भाई काम है नंबर वगैरह लेना, फिर उनको जो है ना जिस कहे भाई आप नंदा सन आते हो, करो लाते हो, ऐसे साथियों से उनके टच में रहना। फिर बहुत सारी चीजों में इनसे रास्ता है, हमारा रास्ता है, खाली एक मतलब गुजर जाना नहीं। ये रास्ते से फिर क्या वो मानुस होता है। उनकी शादियों में हम चले गए, मौत मैयत में हम चले गए, कुर्बानी के मौके पे भाई गोश्त वहाँ नहीं है, वो गोश्त हमने उनको जाके दिया। ऐसी जगहों पे हम जब खड़े रहते हैं तो फिर वो वो हल्की वाले वो तकलीफ है। एक जमात मुझे आता है कि गांधीनगर तो गांधीनगर से पहुंचा तो उनको सब काम सौंप दिया, तो बाकी का काम वो करेंगे, वो फाइल फॉलो करेंगे। करना उनकी निगरानी में उनको सब सौंप दिया, वो लाने का सब गांधीनगर वाले करेंगे। तो तभी उसकी तरकीब बन गई है वहाँ। तो आए कुछ साथी अभी एक होटल में से पूरा स्टाफ पूरा आ गया कल रात को, 15-17 साथी आए उसके अंदर से, बिहार गए सब। अभी जैसे इन्होंने 450 मुलाकातें हुई, 450 मुलाकात में से 10% भी मजमा आ गया ना तो हम तो कामयाब हो गए। आज इंशाल्लाह जुमा है, कुछ जुमा के अभी पहले आएंगे, कुछ जुमा आप के बाद। तो गांधीनगर वाले तो ठीक करते हो, जमात क्योंकि अभी जमात ने कुर्बानी दी और जमात वहाँ पे ठहरी, तो इनका कांटेक्ट इस वक्त ज्यादा है। वो मुलाकातें की, उनसे मानुस हुए, इनका साथ दिया। बाद मरतबा तो बाद जगह पे वो आगे बढ़ते हैं कि भाई नहीं जमात ठहरेगी, तो ऐसे हो तो वो उनसे तो जाते हैं। ऐसे मौके पे थोड़ा सा आपकी तरफ से फोन, समझ में कि नहीं, ऐसे मौके पर उनको फोन करना, उनको भी जरूरत पड़े तो अपने चले जाना, वसूल करके लाना। तो अब ये एक आपके वो माहौल में, अब ये माहौल में आ गए ना, समझो ये माहौल में यहाँ आ गए, काम बन गया हमारा। यहाँ इनका कदम रखना ही जो है वो वो गाँव फतह हो गया है ना। चलो अल्लाह की बोल आज का दिन भी ऐसा जो है अपने कांटेक्ट में याद है, करीब में, आप चले जाओ बस करके प्यार मोहब्बत से उनको लेके आओ, ठीक है। चलो अल्लाह आओ भाई किसी हमारी जमात भी नंदा संघ की जमात से गांधीनगर जोन में चले 10 साथी थे, 9 साथी 4 महीने वाले थे, एक साथी चिल्ले अन्य बदला उसी तरकीब से हमारी जमात भी चली। कितने वही दिया? वही दिया। कुल 22 जगह हमने कदम किया। अच्छा 4 जगह टेंट के साथ किया। माशाअल्लाह। पैदल चलना वही 130 के 40 करीब। जी जी, पूरी तफसील से सुनो ना, पहले गांव में देख क्या हुआ, आपने शुरुआत की, पहला उमेरों की बस्ती में ही गए थे। इनसे आपने मुज़ाकरा किया था, जमात साहब बैठे थे, इनसे सब नाम लिए,
जो 450 नाम से पूरा चौपड़ा है उनको दिया। चलो वही मस्तूरात का भी प्रोग्राम किया। इस तरह ये वो जो सब मिला के जमा किए थे ना ईशा की नमाज में, वही इसी तरह मुलाकात हुई। माशाल्लाह उन सबसे मुलाकात हुई जी। तो उसमें फिर आगे नहीं बढ़ा। अब उन्होंने मुलाकात की, नमाज कायम नहीं हुई, तो आप उनको थोड़ा सा आगे लेके वो नमाज कायम कर देते ना। हमने भी दूसरे दिन जब तीन नमाजों में पाँच सात साथी आते थे। अच्छा, आप लोगों ने पहले से तय किया था कि नहीं? आपकी जमात बैठी थी? आपकी जब बात रवानगी की उस वक्त आप लोगों ने तय किया था कि भाई जाएंगे, यहाँ जाते ही हम यहाँ पे जो वो इंशाल्लाह नमाज शुरू करवाएंगे, 100% मुलाकात करेंगे। ये पहले जैसा ही नहीं है, उसका असर पड़ता है। अभी तो माशाल्लाह 15-20 नौजवान तो आपने भी जमा करने के बाद उनको आगे का कम से कम उस वहाँ पे इबादत खाना तो है ही, जगह भी है लोग, वो मदरसा भी चलता है। हाँ तो जगह भी ढूंढने के लिए जगह भी है, बस खाली वहाँ आपको शुरू करना है। वो जो मौलाना जो मदरसा पढ़ाने आते थे उनसे भी हमने मुलाकात मौलाना की। तो क्या है, मौलाना तो पढ़ा के चले गए। अपने को तो क्या करना है, मकामी आदमी वहाँ का उन ये नौजवानों में से कोई भी एक ऐसा जो नमाज पढ़ा ले, ये हमारा काम है। 2 दिन 3 दिन उसको आमादा करना है, समझे? सब तो अब है तो चले जाएंगे, लेकिन मकामी काम हो तो वो नमाज फिर शुरू हो गई, 1 हुई 2 हुई 3 हुई 5 होगी इंशाल्लाह। फिर जुम्मा में आएंगे, आपका राब्ता रहेगा। ठीक है, चलो। मुलाकात में हमारा चलना 119 किलोमीटर पैदल हुआ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, अल्लाह कबूल फरमाए। कुल मुलाकात 667 मुलाकात 667 हो माशाअल्लाह, ये अल्लाह कबूल फरमाए जी। दो रूट ज्यादा थे हमारे। अच्छा जी, चलो कोई ऐसे देहात की कारगुजारी सुनो ना, जहाँ कुछ आपके जाने की वजह से थोड़ा सा उनको वो हुआ हो, ऐसा कोई इससे 22-23 देहातों में कोई जगह पे आपको भी ऐसे चोट लगी हो, आपको देखकर आपको भी ऐसा लगा हो कि ये बहुत ऐसे कोई कारगुजारी कोई आपके पास आया और लेकर बैठे हो, मैं ऐसा पहली बार उसको सद्दा करवाया हो, ऐसे कोई कारगुजारी आपको तो सुनाओ। इसे तो बस एक दो साथ आते थे नमाज में। मुलाकात की इसी तरकीब थी कि मुलाकात में जाते थे, उनको नमाज का कहते थे तो पहले तो वही जब देखते थे कि हमारे कपड़े अच्छे नहीं है, हम आदमी हैं, इसी तरह भी करके लाते थे नमाज। जी, आपको देखिए मुसलमान तो फाकज होता है। फिर उसको समझा, चलो फिर आगे 13 लोगों को कलमा पढ़ाया। पूरे सफर में 43 लोगों ने हमारे साथ नमाज पढ़ी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे जी। 4 जगह पर हमने जोड़ किए। अच्छा एक यहाँ मीरों की बस्ती में जोड़ किया, मस्तूरात का जी भाइयों ने। एक कुबेर नगर करके है, वहाँ वो तवे लगाने वाले 70 से ज्यादा रहते, 70 के करीब। अच्छा, तो वहाँ हमने जोड़ किया, 30 साथी जुड़े थे। माशाअल्लाह हमारे मौलाना की बातें हुई थी, उन्होंने बात की और उनको यहाँ आने की भी और वहाँ पर मतलब नमाज पढ़ने की और तालीम करने की तैयारी की। माशाअल्लाह। और फिर एक बार हमारा बेकरी पर हुआ था, वहाँ तो इबादत खाना है ही, इबादत खाना नमाज भी होती है, तालीम भी। अच्छा, इसमें और जोनों में आपकी फैक्ट्रियाँ भी होगी ना? फैक्ट्रियाँ हैं, एक ईंटों के फैक्ट्री कारखाने या ऐसा भट्टे, जी है। इसमें ऐसी जगह पे कहीं जाना हो, एक कांच की फैक्ट्री में जाना हुआ, वहाँ इबादत खाना है, बाकायदा नमाज नमाज होती है। तो वहाँ तालीम और मशवरे की भी थोड़ी तरकीब दी थी साथियों को। अच्छा अच्छा माशाअल्लाह, और तो काम होता है। और कोई ऐसी कारगुजारी आपकी, उसमें कैसा होता है, इसी जॉन में ढूंढना, मुसलमानों को ढूंढना, देहातों में, फैक्ट्रियों में, कारखानों में, बहुत सारे। अभी तो माशाल्लाह देखो इस जॉन की जो नेमत मिली है, वाकई में अजीब अजीब लोग जाते हैं उसमें घुसते हैं। अभी इस तरफ के इलाकों में उन्होंने माशाल्लाह जो शुरू किया बैद, पता चला कि वो हाफिज़ कुरान है, हाफिज़ कुरान। यानी ऐसे ऐसे लोग वहाँ आए हैं, बरसों से रह रहे हैं और इनका कोई बस्ती से कोई कांटेक्ट नहीं है, समझ में? तो ऐसा 10 वो कुर्सों में ऐसे कोई जगह आपने तलाश की, कोई ऐसे मिले आपको ऐसे लोग?
एक जगह हम गए थे तो गांधीनगर के करीब है, तो नर्सरी है, और एक नर्सरी है, वहाँ नर्सरी पे 5-6 आदमी हैं और वो हाईवे पे है, तो आजू बाजू पंचर वाले हैं सब, उनको सबको मिला के मुलाकात की और वहाँ नर्सरी पे एक जगह ठिया बनाकर नमाज पढ़ने की, एक तालीम करने की तरकीब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, अल्लाह कबूल फरमाए, बहुत बहुत कबूल फरमाए। कितने लेकर आए? फिलहाल तो एक साथ ही आए तो 600 ने कितनी बना कर देना? 667। अभी 667। कल फोन किए सर ने आज आने का बोला है। वो नहीं, जाने का, आज जाने का। जाने का आपको, आपके साथियों को लेके जाओ, फोन पे नहीं होता, या तो चले जाने के और जाके तरगीब देकर समझा बुझा के को लेके आओ, बल्कि गाड़ी भी अब लेके जाओ, है ना, थोड़ा खर्च कर डाले, फिर उनको प्यार मोहब्बत चलो ना, बहुत सारे आएंगे, अभी 2 ही आए, एक आदमी। एक आए, चलो, अल्लाह कबूल फरमाए। आएंगे अभी दूसरे मौलाना ये ये थोड़ा फिक्र हो जाए अभी आज का दिन है ना, ये दोनों जमाते भाई, आप लोगों की भी जमाते हैं माशाल्लाह, जो है उनको हल्के वालों को जो पहले से चले फिक्रमंद साथी उनको भी साथ में लेकर जाके लेके आए। ये आगे हमारा काम हो गया। वही देखे माशाल्लाह, कारगुजारी इन्होंने सुना है माशाल्लाह, जमाते हर एक जमात अच्छा काम करके आती है माशाल्लाह, जो वो चलती है ना तो वो काम करती है, और उनका चलना ही खैर का जरिया, उनका निकलना ही, ठहरना ही, मैंने जैसे मैंने कहा ना कि हमारा ठहरना, हमारा वहाँ पर जो है वो जिक्र करना, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, ये सब रंग लाएगा, ये बीच डल गए, समझ रही बात। अब जो है वो एक तो ये पहली बात है, जैसे हमारे बुजुर्ग कहते हैं ना, ऐसे करने का, हाँ ये है कि जैसे कहा गया ऐसे, तो वो तजर्बेकार है, उन्हें पता है, तो जो हमें आज 2010 में जो बातें कही गई उसी तरतीब से कि ठहर कर पहला काम हमारे यहाँ होना चाहिए कि वहाँ पर जो है वो इबादत जो है वो नमाज शुरू हो जाए, पहला काम। इस वक्त उम्मत में नमाज नहीं, अकबरुल कबाइर है नमाज का छोड़ना, गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह है, हाँ, और ये आज उम्मत में नहीं। अब क्या मसला उम्मत के हल होगा, आज आप देखो ना कितने हालत है, चारों तरफ देखो, चारों तरफ, बल्कि बेदीनी का पहाड़ है और बेदीनी का सैलाब है, हाँ, जैसे जैसे दिन जा रहा है ऐसे फितने बढ़ते जा रहे हैं, और फितने जो आ रहे हैं। जैसे जो रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जिस वक्त उम्मत में 50% नमाज जिंदा होगी, अल्लाह ताला बातिल के उरूज को रोक देंगे। जितने मसाइल आ रहे हैं ना, हल नमाज, हाँ, नमाज जिंदा हो जाए, घरों में, मोहल्लों में, ऐसी कस्म पुस बस्तियों में, ऐसे लोगों में नमाज जिंदा हो, ये पहला काम। फिर फरमाते थे कि जब 50% से नमाज आगे बढ़ेगी, 51-52% होगी, अल्लाह ताला उसके उरूज को खत्म कर देंगे, हाँ, ये बिल्कुल पक्की बात है। तो ये है पहला काम। ऐसे लोगों में बहुत बड़ा तबका है कि नमाजी नहीं। देखो ना, ईद की तादाद कितनी होती है, जुमा की तादाद कितनी होती है, फजर की, जब इसकी जरूरत है। पहला हमारा नमाज जिंदा हो हमारा, और इसलिए हम न इबादत खाने के चक्कर में पड़ेंगे, न ताबीरात के चक्कर में पड़ेंगे, न जका के चक्कर में पड़ेंगे। दरख्त जो है ना उसके नीचे चटाई लटका दी, चटाई बिछा दी, हो गया काम। और ना कोई इमाम नहीं इसका जो है उसको नज्म हम बनाएंगे कि नहीं, हमारा काम तो यही है, उसी में से किसी को तय करके शुरू करवा देना है, इसलिए कि ये निभने वाला है, वो निभने वाला नहीं है, वो नहीं निभेगा। तो पहला काम तो हमारा ये होना चाहिए कि नमाज जो है वो जिंदा हो जाए। दूसरा कि हर एक से मुलाकात, देखो माशाल्लाह जमातों ने की ना, हर एक से मुलाकात। अब जो है वो जमात तो माशाल्लाह काम कर गए, अभी जमात के साथी अब इसको ले जमात में जाना, इससे पहले जितने 2010 से चल रही है हमारी बराबर। अब जो है ना वो कह रहे हैं जब वो पूजा भरा गया, अब थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, थोड़ा सा इंशाल्लाह करेंगे ना, तो ये आपके जितने दोस्त होने ना
और 2 जोन में टोटल देहात कितने आपके 37 दोनों मिला के ये 37 और 37 में इंशाल्लाह जहाँ पे नमाज नहीं है नमाज जिंदा हो जाएगी। अब वो टाइम आ गया है, बिल्कुल आ गया है, थोड़ी सी मेहनत समझा ना, बिल्कुल आखिरी वक्त का जो मौका होता है ना वो असल होता है और अल्लाह ताला उस वक्त पे ही देते हैं। ये अल्लाह की सुन्नत है कि कीमती चीज होती है अल्लाह पाक आखिर में देते हैं। ऐसे हिदायत भी अल्लाह पाक कब देते हैं? हाँ, थोड़ा सा आदमी मेहनत करता है वो आखिर में अल्लाह पाक हिदायत देते हैं। आखिरी जो वक्त होता है ना बस वो वक्त अब आ गया है, बिल्कुल करीब है। माशाल्लाह जमातों ने, ऐसा नहीं है कि कोई जमात ने, सब जमातें ने बहुत अच्छा काम किया है। तो बाद में कारगुजारी सुना पाते, बाद नहीं सुना, असल कारगुजारी तो अल्लाह पाक, उनका चलना, उनका फिरना, उनका रोना, उनके साथ में जो किए थे जो सारी चीजें वो सब एक कुर्बानी बन गई, वो सारे रंग लाएंगे। वो इंशाल्लाह एक जिहादों में अल्लाह पाक हिदायत के चिरागों को रोशन करेगा। हाँ, ये जो इब्तिदा में मौलाना इलियास साहब ने जब जमातें शुरू की ना, जब ये हाल था, बल्कि इससे भी बुरा हाल था। हाँ, आप सोचो कि मुखालफत शिद्दत पे थी, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, धक्का मारते थे, निकाल देते थे, खाना फेंक देते थे। हमारे भाई बंदे करीम कहते हैं कि हम लोग गए नहीं तो हमारा खाना भी इन लोगों ने फेंक दिया। हाँ, और पूरे गांव वालों ने हमको ये नहीं, कोई चीज लेने के लिए आवे ना तो देने के लिए, हम ऐसे दरख्त के नीचे पड़े रहे, कोई चीज हमको नहीं। तो वो कहते कि वो केरोसिन जो वो खलास हो गया, मिट्टी का तेल, प्राइमस उस वक्त होते टेस्ट होते नहीं, तो प्राइमस में केरोसिन खलास हो गया, तो वो मिट्टी का तेल लेने के लिए तो किसी ने नहीं दिया। फिर दूसरी जगह गए, वहां पे भी किसी ने नहीं दिया। तो जमात परेशान, एक दी दूसरा दी, वो सबसे करीब थे कि वो कैफियत एक बनी थी। तो कहते हैं कि वो इब्राहिम मिस्री मरहूम कहते हैं कि उस जमात में मैं था, तो वो कहते हैं कि वो भाई फतेह करीम ने पानी का जग वो प्राइमस में डाल दिया और फिर उसको बंद करके बिस्मिल्लाह बोल के उसको चलाया। बोले 17 दिन तक चलता रहा, 17 दिन चला। वो कह रहे थे तो ये चीजें होती क्या, वो चीज ऐसों में चली जमात। और फिर क्या हुआ कि तब्दीली आई। अभी हम लोग गए थे यहाँ पे गुजस्ता कालेला, मौलाना नजीर साहब ने जब शुरू किया ना 50 साल पहले ये मेहनत को, तो एक अस्म पुरुष था, कोई पुरसान हाल नहीं, कोई करीब होने के लिए तैयार नहीं है। ये संगीन हालात में एक तरफ हुकूमत के हालात, एक तरफ जो है वो कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई नुसरत का तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन हिम्मत है कि हम सबको मिलकर करना है। जब प्याला भरा रहा है, जब प्याला भरा गया, थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी फिक्र, थोड़ी सी कुर्बानी, थोड़ा सा मुतवज्जो होना, थोड़ा सा अगर मुतवज्जो हो गए ना, एकदम से रोशनी हो जाएगी। हाँ, तो वो बड़े बड़े कहते थे कि मौलाना अब चले जाओगे तो फिर क्या होगा, तो वहाँ के नहीं, इंशाल्लाह हर घर में अल्लाह पाक आलिम को पैदा करे। अभी वो कालेला में नमूना है कि हर घर में 2-2, 3-3 आलिम है एक एक घर में, समझना ना। मौलाना मंजूर साहब नुमानी आखिरी वक्त में मौलाना इलियास रहमतुल्लाह के पास में आए और मौलाना इलियास रहमतुल्लाह के सामने आके रोने लगे और कहने लगे, हजरत हम तो जीत के हार गए, हम तो जीत के हार गए। हजरत मुनाजिर थे, बड़े मुनाजिर थे, तो मुनाजरा होता था, मुनाजरे के अंदर वो सबको उन्होंने हराया, जीत गए वो। हम जीत के हार गए, क्या मतलब? और हजरत आप हार के जीते, हम जीत के कि हम तो जीत गए, लेकिन कोई हमारी वजह से नमाजी नहीं बना, किसी देहात में इनकलाब नहीं आया, किसी बस्ती में अल्लाह को सदा करने वाले वजूद में नहीं आए। ये जाहिर में तो हम जीत गए, लेकिन नतीजा नहीं निकला, हार गए। और आप जाहिर में हार गए कि आपको निकाला, धक्के मारे, कोई पुरसान हाल नहीं है, आपके खानों को फेंक दिया, आपको धक्का मारा, हाँ बुरा भला आपको कहा कि जाहिर में तो आप निकले, लेकिन आपने तो बस्ती की खाना कि बस्ती में मकाती मदारिस खानखाह वजूद पे आ गई, बच्चे हाफिज बनने लगे। तो ये मेहनत अब ये भी कोई कि 250 ज्यादा मुल्कों में मेहनत हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे कैसे ममालिक में। हाँ, कि जहाँ इर्तिदाद का दौर और जहाँ इबादतें बिल्कुल नहीं, जुम्मा भी इतवार को पढ़ते थे,
जुमा का पढ़ते थे। हाँ, और किसी का इंतकाल हो जाता ना तो उसको कोल्ड स्टोरेज में रखकर इतवार को दफनाते थे। ये दौर था। आज वहाँ देखो तो कॉलेज में जाने वाला बच्चा अमामे के साथ है, कुर्ता पायजामा है, शरीयत और सुन्नत का पाबंद है। 2015-16 में हम लोग एक मुल्क में गए थे, बहुत खुशहाल मुल्क है, दुनिया का बिल्कुल किनारा, उसके बाद पानी है बिल्कुल आखिरी। तो वो मुल्क देखो तो बहुत अय्याश है। हमारे एक बुजुर्ग कहते हैं कि ये ऐसा मुल्क तो मैंने कोई मुल्क नहीं देखा, इतनी अय्याश यहाँ पर। ऐसा औरतें कपड़े पहनना जानती ही नहीं है, 2 चिथड़े होते हैं। लेकिन वहाँ देखो आप नौजवान ने अपनी जवानी की इस काम की बरकत से हिफाजत की। असर से मगरिब का वक्त वो मस्जिद में निकलता है, वो हफ्फाज मिलते हैं, कुर्ता पायजामा, औरतों में शरीफ बुर्का, और अपनी जबान बाकी, जबान गुजराती बाकी। एक ही मेहनत है, ये वो मेहनत है। तो माशाल्लाह इस मेहनत के नतीजे में दुनिया के अंदर पानी पहुंच रहा है। हाँ, और अब एक वक्त आ गया है, थोड़ी सी जरूरत है थोड़ी कुर्बानी की। हिसाब तोलते हो ना 1 किलो सेब तो 3 डाले 4 डाले, अभी नहीं हुआ। अब वो सीधा कौन सा, क्या 5वां डालो तो? हाँ, तो 5वें का कमाल नहीं है, कमाल तो सबका है। तो मेहनत तो सबकी है, इब्तिदा से सारे लोगों की लगी, सबने किया, अब वो भरा गया। अब सब मिल के कि हमें तय करना है कि कोई बाकी बेनमाजी बाकी नहीं रहना चाहिए। कोई अभी 37 दिया था ना, अब यहाँ बैठ कर हम जिम्मेदार तो पूरे आलम के, लेकिन इस वक्त खुसूसन इस देहातों के, अपनी बस्ती के और इन देहातों के जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर भी, और इन बस्तियों में हम सबको एक फिक्र होकर तय करना, और थोड़ी अंदर बेचैनी हो। लेकिन सुन्नतें नबियों की बहुत अहम, जिससे काम होती है, एक हर नबी फिक्रमंद, बेचैनी होनी चाहिए, बेचैनी दूर होनी चाहिए। फिक्र होती है ना हर वक्त, तो वही चैन कैसे ये देहात वालों को कैसे हो, एक बेचैनी होती है, अंदर हो बेचैनी सवार हो, ये कैसे इनका असर आप तक हो जाए, कैसे उनसे पहुंचा जाए। हाँ, क्योंकि वो आदमी पहुंचता था, वो होती हमारे साबिरीन जहाँ तय करते थे कि भाई करना है हमें, तो वो करते थे। इस गाँव में जाना है तो वो छतरियाँ लेकर गए, इतने लेकर गए, हाँ कपड़े लेकर गए, पहुंचे अंदर, हाँ बल्कि अपना लिबास बदल कर गए। ये अंदर की फिक्र होनी, एक में पहुंचना, एक के पास में जाना। हुजूर का उम्मत ही है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने किसी को छोड़ा नहीं है, आपने किसी को नहीं छोड़ा है, किसी को नहीं छोड़ा, कोई दुश्मन को भी नहीं छोड़ा। अबू जहल के पास कितनी मर्तबा गया, ओहो अनंत मर्तबा गया, कई मर्तबा गए अबू जहल के पास। हाँ, आप देखो और दूसरे की तरह सबके पास, किसी को नहीं छोड़ा, ये कोई नहीं छूटना चाहिए। ये हम मेहनत के मुकल्लफ, उसमें फिक्र होनी चाहिए, और मेहनत अपने बस की होनी चाहिए। मेहनत पूरी हम कर डाले, थका डाले, हाँ तो थकना है। ये एक तो माशाल्लाह इस वक्त आप चले, अल्लाह कबूल फरमावे। अब साल भर में ये देहात हमारे कांटेक्ट में होने चाहिए कि भाई 14 साल हो गए, अभी 37 में अभी जो है वो नमाज जिंदा नहीं हुई है। हाँ, अब इसीलिए एक निशाना बनाना है, टारगेट बनाना है। हमारी 3 दिन की जो जमातें बनती है ना, वो 3 दिन की जमातें, भाई कलोल वाले उसके अपने जोन में, कड़ी वाले अपने उसके जोन में, नंदासन वाले अपने उसके जोन में, ऐसे ही। अरे देखो हमारी 3 दिन की जमातें, चाहे वो मजबूत हो चाहे मजबूत ना हो, वो ट्रेन लेकर जाकर वहाँ जाए, मिले जुले साथी ऐसी जमात बनाकर इससे रोजा हमारे वहाँ पे लगने चाहिए। 3 दिन हमारे हर महीने पाबंदी से लगे। लेकिन अब इस वक्त बहुत सारे देहात क्या कहते हैं कि भाई आप तो वर्ष में एक बार आओ जो, फिर आप पूछते नहीं। हाँ, वो एक तलब आपने पैदा की, आप गए माशाल्लाह, उनमें कुछ हरकतें आई, अब तो आपने मुलाकात की नहीं की, उससे कोई वो निस्बत नहीं, लेकिन आपका वहाँ ठहरना है ना, वो ठहरना ही इनकलाब ला रहा है। अब जिस बस्ती में ठहरे ना, वो दिल नरम है सबके, अब उसको अपने रास्ते में रखना। अब उनको आप रास्ते में 3 दिन के जरिए आप उनमें 3 दिन की जमातें वहाँ पर जाए, और आप 3 दिन की जमातें पूरी कोशिश करें। देखो माशाल्लाह साल भर में जिन जिलों ने इसको लिया, माशाल्लाह वहाँ पे कारगुजारी सुना था कि हमारे पास में 150 बंदर बस्तियाँ थी, अब माशाल्लाह 50 बस्तियाँ आबाद हो गई, 20 बस्तियाँ आबाद हो गई, 15 बस्तियाँ आबाद हो गई। वहाँ माशाल्लाह मदरसा शुरू हो गया, नमाज शुरू हो गई, और माशाल्लाह बल्कि वहाँ से लोग निकलने वाले बन गए, अल्लाह के रास्ते में वहाँ से ऐसी बस्तियों से निकलने वाले बन गए। हर जिले की कारगुजारी आ गई,
शेख मूसा की जमात है हमारी वहाँ पे जानी चाहिए। हाँ, ऐसे करीब में कि जो अपने अपार्टमेंट में अपनी जो करीब की जगह वो तो दूसरे घर से उसको कवर करना है, दूसरे घर से करना है। ऐसे ही फिर उसे राब्ता रखना चाहिए। हाँ, राब्ता रखने के लिए उनको भरोस करना। भाई शादी भी है, आपको पता है, पहले दोस्ती करो आप उनसे। एक तो कैसा है कि भाई मुलाकात हो गई, अब मुलाकात के माने ना उसका ना पता है, नाम पता है, ना नाम है, मालूम है कौन है। नहीं भाई, मुलाकात के माने मालूम होना चाहिए। हाँ भाई, हमारे रिश्तेदार हमें पता होता है, भाई हमारे रिश्तेदार है, भाई फुला, ऐसे हमें उनकी नौयत मालूम होनी चाहिए। और एक इस निस्बत पे नहीं जाना है, ठीक है, उन्होंने बात सुन ली, लेकिन एक दोस्ताना निस्बत पे, दोस्ताना निस्बत पर आदमी खुलता है, उसको आप मानूस करो। अब उसको आप कहो, देखो भाई हम रहते हैं, आपको जरूरत पड़े आप कहो हमें, हम आपको, और आपको फोन करेगा। हाँ, ऐसा कई हुआ, कई दिया तो हमें उन साथियों से राब्ता हुआ, फिर पता चला कि नहलाने वाला कोई नहीं है। तो वो जो साथी थे ना, उन्होंने फिक्र किया, तो पता चला कि वो लोग ले जा रहे थे, और बिल्कुल उसको जलाने का प्लान था, उसको जला देना है, और बिल्कुल तैयारी। वो तो फिर वो साथी था, उसको फिक्र हुई, उसने उनको साथियों को फोन किया, वो रास्ते में था, वो फौरन वो लोग आ गए, और आने के बाद फिर उसको गुस्ल दिया, तजीज़ो तकफीर हुई, और उसको झोंक दफनाया। बात समझ में आ रही है? एक रास्ते के अंदर उनसे हमें रहना है। हाँ, तो उनसे दोस्ती करे, चले जाए, कुर्बानी का मौका है भाई, कुर्बानी में गोश्त बहुत तकसीम करे जाए। हाँ, कोई ऐसे हालात आए, भाई जरूरत है, बहुत जरूरतमंद लोग हैं, भाई ज़कात को कि हमारे पास में निज़ाम है, भाई वहाँ पर पहुँच जाए, कीटों का कोई निज़ाम है, वहाँ पर जाकर हम तकसीम करें। एक निज़ाम है, उनकी शादी भी है, उनमें हम खड़े रहे। हाँ, क्या जिसा फिक्र ना करता, कोई वस्तु की जरूरत है तो मैं आऊँगी, उनकी रहबरी करे, सही रहबरी करे। हाँ, जाकर हमारे पास 5-6 साथी उनके साथ में बैठे, समझ में है ना, आपका बैठना खाली नहीं होगा, आपका बैठना खाली नहीं होगा। अब बहुत सारी जगह पर हमारे साथी वहाँ पर पहुंचे थे देहातों में, तो वो गरबे होते थे, गरबे, वो डीजे बजता था, गरबे होते थे, और वो घर की सारी औरतें सज धज के वो गांव जो उसमें मैदान में सब वो गरबे गाती थी। ये माहौल था, लेकिन वो साथियों ने जाना शुरू किया ना, तो एकदम से वो चौंक गए। हाँ, और फिर उन्होंने कहा कि भाई ये तो पहले मना नहीं किया, लेकिन वो जाकर बैठे, तो वो जैसे पहुंचे ना, वो सब शर्मा गई, सब अंदर चली गई। हाँ, और फिर इन्होंने रोज जाना शुरू किया और बातें शुरू की, बात समझाई उनको, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो शादी हो गई, वो फरमात खत्म हो गई। हाँ, ये चीजें हैं, ऐसा उनसे हमारा राब्ता, वो उसको ऐसा होता है कि भाई ये तो हमारे मोहसिन है, हमारे अच्छे लोग हैं। और ये चीज़ हमें समझाते हैं। अच्छा, ईमान वाला जो होता है ना, तो ईमान, जब इस ईमान का मुजाहरा करता है तो अंदर आग लगती है। पहले हम नहीं कि भाई सुनेंगे नहीं, और ये तो भाई नहीं मानेंगे नहीं, ऐसा नहीं, हमें जाना है, कोई भी हो, कि कोई भी हो, हर एक के पास में जाकर उनसे बात करना। शादी दिया में, मौत में, इंतकाल हो गया, आप पहुँच जाओ, सारे पहुँचो, सारे पहुँचने चाहिए। चाहे भाई उसने बात नहीं सुनी, उसने हमको धुतकार दिया, धक्का मारा, लेकिन आप इंतकाल हुआ, पहुंच जाओ। आपका पहुंचना ही जो है ना, पहुंचना ये आपका खैर का जरिया बने। काठियावाड़ में बहुत सारे देहात ऐसे हैं, सख्त, आज भी सख्त है, आज भी सख्त है, बल्कि आप अगर मस्जिद में चले गए तो मस्जिद धो डालते हैं, ऐसे सख्त देहात। लेकिन ऐसे मौत मैयत में जाने की वजह से बहुत सारे ऐसे हुए कि भाई जनाजा, आपको कोई है ही नहीं, मौलवी साहब नहीं है, तो उससे जनाजे की नमाज पढ़वाई। भाई मैं तो बोले नहीं कोई बात नहीं, आप पढ़ाओ, कौन मना करता है कि नहीं? तो ये बहुत ये मुलाकात का हमारा इख्तिलात बहुत असर है। और अच्छा, ऐसा एक बात और है, बासर लोग बस्तियों में, बासर लोग, उनसे रास्ते में रहना। अभी हम लोग 10 दिन मस्तूरात के अंदर गए थे, तो काठियावाड़ में, तो वहाँ गैरियाधार के पास एक देहात है, तो भावनगर की जमात जोन की चल रही थी, उसमें 6 उलमाए कराम थे। तो वो उलमाए कराम, वो बस्ती 300 मकान, लेकिन अनटच, आज तक वो लोग नहीं गए वहाँ, हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन वो जमात ने हिम्मत की, और जमात जो है वो सीधी अंदर चली गई, मस्जिद के अंदर ही चली गई। तो वो मस्जिद के अंदर गई तो हंगामा हुआ, और सब जमा हुए, और सब बहुत सारी बातें हुई, लेकिन जमात हिम्मत वाली थी। तो खैर बहुत बात आगे बढ़ गई, तो जमात ने जो है ठीक है क्या करे, तो फिर वो थोड़ा सा बाहर चले गए, वहाँ टेंट डाला। खैर वहाँ जमात जम गई, भाई हम यहाँ मस्जिद में नहीं ठहरते, यहाँ पर ठहरते हैं। अब उन्होंने सरपंच की मुलाकात की,
اور सरपंच की मुलाकात करके सरपंच को फिक्रमंद किया, अपने पास में बुलाया, चाय वगैरह पिलाई, नाश्ता वगैरह करवाया, और फिर उसको अमल कहे। और जब अमल कहे ना तो समझदार था, सूझबूझ था, तो उसने देखा, तो उसने कहा कि भाई ये तो आप तो सही बातें बता रहे हो, और ये तो आपकी तालीम में तो बार बार नबी अलैहि सल्लम का नाम आ रहा है, और ये तो हमको कहते हैं कि तो मानते ही नहीं। तो वो सरपंच ने जब उससे मुलाकात हुई तो सरपंच ने क्या कहा कि भैया नहीं, ये जो है ना मस्जिद में आपने बाहर नहीं ठहरोगे, आप ये जो बाजू में कमरा है, मस्जिद का बड़ा हॉल था, हॉल में ठहरोगे आप। तो वो जमात को हॉल में ठहराया और उसने कहा कि सबकी मुलाकात करो, कौन मना कर रहा है। तो माशाल्लाह चले वो, और चलने के बाद फिर दूसरे दिन वो लोग हमसे मिलने के लिए आए, तो मुझे लेकर मुलाकात करवाने के लिए तो सरपंच से, तो मैं उनके पास में गया, सरपंच के साथ में बैठा, आधा पौना घंटा बातचीत हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह मकतब उन्होंने शुरू करवा दिया करीब के अंदर, उसी बस्ती के अंदर मकतब शुरू हो गया। अब जो है वो नमाज भी जो है वो नमाज तो उसकी मस्जिद में हो रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नमाज तो होती है लेकिन नमाजी नहीं है, नमाजी नहीं है। मैंने उनको कहा कि इमाम को भी मानुस करो, आप उसको करीब करो, कुछ हदिया दो, कुछ हदिया देना चाहिए, समझ में आया ना? हाँ, इस घर से नहीं देना चाहिए कि भाई वो हमको कयाम करने दे रहे, या जो है ये अल्लाह राजू, इसलिए तो माशाल्लाह उन 62 लोगों की मुलाकात हुई। तो 62 की मुलाकात की वजह से कि ऐसे लोग होते हैं ना, अन्नासु अला दीनी मुलूकिहिम, लोग उनके पीछे होते हैं, तो उनको देखकर बहुत सारा हमने देखा हो कि बहुत सारे लोग वो माइल हो गए, वो 35 आदमी, 40 आदमी, 50 आदमी हो गए, तो फिर इन्होंने जोड़ भी किया माशाल्लाह पूरा। अब वो इतने सालों से अनटक दिहात था, अब बताओ अगर उनका इंतकाल हो गया होता तो किसको पकड़ते, किसको पकड़ते, इसका गिरबान। तो जो हमारी जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारी को पूरा करना अब हमारा काम है, हमारे जिम्मे हमें करना है, जितना अपने बस में है उसकी कोशिश करनी चाहिए। दो, एक गैर मुस्लिम एक मुसलमान, दोनों दोस्त थे, गहरी दोस्ती, दोनों खाना भी, दोनों पार्टनर भी थे, दोनों का कारोबार साथ में था, एक साथ में कारोबार करते, तो इतना इख्तिलाफ, साथ में सोना, साथ में खाना, साथ में। अब उसका इंतकाल हो गया, वो गैर मुस्लिम का, गैर मुस्लिम का इंतकाल हो गया। अब उसके बाद वो आदमी जो उसका पार्टनर था, जो मुसलमान था, वो बहुत एकदम घबरा गया, क्या बात है, कुछ चीजें बेचैनी है कि बहुत मसला हो गया मेरा, कि क्या हुआ कि आज रात में मैं सोया था, मेरे ख्वाब में मेरा वो गैर मुस्लिम भाई ख्वाब में आया, जिसके साथ में हम खाते, एक सदमा था मुझे, उसकी बहुत याद थी, वो मेरे ख्वाब में आया, वो मेरे ख्वाब में आकर उसने मेरा गिरीबान पकड़ लिया और उसने कहा इतना बड़ा तूने मुझे धोखा दिया, इतना बड़ा मुझे तूने धोखा दिया, साथ में खाते थे, साथ में जाते थे, साथ में रहते थे, सब कुछ करते थे, तुमने मुझे कलमे की दावत नहीं दी, हमेशा के लिए चला गया, तो ये तो हमारे लिए हुज्जत बनेगी, समझ में आ रही है? हाँ, तो अभी मौका अल्लाह ने हमें दिया, जितनी अपने बस में मेहनत कोशिश में कर डालनी चाहिए कि कोई एक दिहाज भी बाकी नहीं रह रहा है। ये ऐसी मेहनत का निजाम अल्लाह पाक ने हमको दिया है ना, इस मेहनत के लिए जैसा कहा ऐसा हम करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आप देखोगे कि जल्द नतीजा निकलेगा, और जल्दी से। अब तो मैंने कहा ना कि प्याला भर चुका है, प्याला क्या है, शिद्दत खत्म हो गई, अब वो चीजें नहीं रही है, हाँ शिद्दत खत्म हो गई है। अब आप कहीं भी जाओ, आप हिम्मत से काम की जरूरत है, हाँ कि आज जाओ वहाँ जो है वो तब्दीली आएगी, बदलाव आएगा, तो भाई सब करेंगे, सब करेंगे। अच्छा, ये पिछले साल में आपको जिन जिन जोन को दिहाते दिए, जो इसी मस्जिद को गुज़श्ता दिहात दिए थे, तो जरा थोड़ी उसकी कारगुजारी आना। जी भाई कलोल वाले गुज़श्ता कितने दे खड़े हुए गुज़श्ता आपको जमीयत पूरा क्या और क्या क्या दिया, अलग दिए, पूरे कलोल में दिया था, अलग अलग हमारे कलोल हल्के में नहीं 4 पूरी, गांव आप अभी हल्के की सुनाओ पूरी। हाँ कलोल हल्के तो 4 दिए ना, 4 गांव है, 4 गांव है, चारों को अलग अलग गांव है। हाँ तो गुज़श्ता कितने दिए, गाँव को कितने दिए कलोल में जमीयत पूरा एक गांव है आपको, और दूसरों को कितने दिए, छतराल वालों को अलग गांव दिया, बिलेश्वरपुरा, बराबर। राजपुर वालों को अलग गांव दिया, बोरूदा। अच्छा 4 दिए, तो जरा उसकी कारगुजारी सुनो क्या हुआ। जमीयत पूरा, आप लोगों ने पूरे साल में कितनी जमातें डाली, जमीयत पूरा में मदरसा चलता है, अभी
अभी ये वैकेशन हुआ ना, समर वैकेशन, मदरसों बच्चे मौसाल में गए तो मदरसा बंद था। अभी ये महीने में 2 या 3 मरतबा जाना हुआ मदरसे की बात हुई, वहाँ शादी थी, बोले 1 तारीख को शुरू करना, ये इज्तिमा की दावत देने भी गए थे। नहीं, पूरे साल भर में आपने कितनी जमातें डाली? जमात 3 दिन की नहीं गई, जोन की जमात 2 दिन, अरे 2 भाई, जमातें दूसरे दिए थे ना, देने का मतलब क्या था? ये पूरे साल भर में हमारा रास्ता हो, जमाते जावे, हमसे अखिलात हो। 2 महीने में एक बार मुलाकात में जाते थे 3-4 साल से। 2 महीने में एक मरतबा एक आध नमाज वहाँ पढ़ते थे जाके। मुलाकात होती। शादी भंडारी फुंडारी जोड़ना गईला 3 दिन की जमात नहीं डाली आपने? अच्छा, ऐसा राजपुर वालों ने और दूसरे फुंडाली रुपये भंडारी इसके अलावा पूरे साल में कौन सा ये 17? अच्छा नहीं, ये करोड़ के दूसरे जो दिए थे उनमें वो कोई कई था? करोल हल्के में ही है। अच्छा, 17 करोड़। सब जो हमारे आई मस्जिद में 0 की बस्ती है पूरा, करीब हो गई। और दूसरा क्लस्टर से वहाँ मसूरत में शुरू हुआ, 2-3 साथी को 3 दिन लगे। 2-3 साथी को 3 दिन लगे, मसूरत में छोड़ दी हुआ है। नहीं, आपकी 3 दिन की जमातें गई तो गुजस्ता आपको कहा था ना कि भाई 3 दिन की जमातें तो हमारी जावे, और अपने जो गरीब में वो दूसरे कच्चे करें। 3 दिन के अलावा जरूरत पड़े, जैसे लोग कह रहे हैं 2 महीने में 3 महीने मुलाकात के लिए जरूरत पड़ी, वहाँ गए थे भाई मकतब शुरू करना है, उसका निजाम बना। तो साल भर 12 मरतबा हफ्ता होना है, क्योंकि ऐसा एक बार हम गए अभी जोन में जाना, वहाँ माइंड असल जोन की जमातें चलेगी, वहाँ मकतब चालू हुआ। याकूब भाई को मतलब चालू हो गया। कब हुआ? सबीर तो गुजर साल हुआ। अब ये पूरे साल में आगे क्या हुआ? 3 दिन बाद वहाँ से कुछ जमातें बनी, 3 साथियों ने वक्त लगाया वहाँ से 3 साल, हाँ माशाल्लाह, ये 3 काम दिन की हुआ। जमात में आए थे वो 3 साथी। हाँ, अब उसको आगे बढ़ाओ ना। 3 दिन की जमातें डालो तो बढ़ेगा। वो जमातें वहाँ से नकल लेकर आवे, नकल जमात लेकर आवे, वहाँ मसीहा जमात कायम हो, मुलाकातों का निजाम कायम हो, आगे बढ़ाना है। क्रिकेट का